हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 7 चैप्टर पे हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। ये चैप्टर लिया गया है 8th स्टैंडर्ड CBSE के आर पास टेक्स्ट बुक से। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। In earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. In this chapter, we will try and understand what implication it had for the lives of students. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बच्चों के लाइफ में क्या चेंजेस हुए जब ब्रिटिश रूल कर रहा था. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. ब्रिटिश जो आए थे इंडिया, उन्हें ये नहीं चाहिए था कि वो पूरे टेरिटरी को कॉन्कर करे और उनके पैसे हड़प ले. उनको ये भी था कि वो उनको एक कल्चरल मिशन था कि वो सारे जो लोग हैं उन्हें सिविलाइज करें, उन्हें पढ़ लिख के आगे बढ़ाएं और उनके कस्टम्स और वैल्यूज़ को चेंज करें. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, and made into what the British believed were good subjects? क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकती थी ब्रिटिश? कैसे इंडियन को एजुकेटेड किया जाता, सिविलाइज किया जाता? The British could find no simple answers to these questions. They continued to be debated for many decades. चलिए देखते हैं how the British saw education. एजुकेशन के प्रति ब्रिटिश की क्या राय थी? Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that were now taken for granted evolved in the last 200 years. 200 सालों पहले कैसे education की ideas evolve हुई. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. So Indian ने Britishers के ideas पे कैसे react किया और उन्होंने कैसे develop किया उनके खुद के point of view और इंडिया को कैसे एजुकेटेड बनाया. द ट्रेडिशनल ऑफ ओरिएंटलिज्म, इसका मतलब क्या है? इन 1783 अ पर्सन नेम विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाता. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. कंपनी ने एक सुप्रीम कोर्ट सेट किया था और उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए जूनियर जज. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट. सो लिंग्विस्ट का मतलब है भाषा. उन्हें भाषा बहुत अच्छे से बोलने और समझ में आती थी और वो एक्सपर्ट भी थे लॉ के. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, had picked up Arabic from a friend and also had learned Persian. At Calcutta, he began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language. उनको बेसिक संस्कृत भी सिखाई गई पंडितों से, grammar and poetry. Soon he was studying ancient Indian texts on philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences. तो वो इंडियन टेक्स्ट को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें भी सीख रहे थे स्टूडेंट्स. Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. और जोन्स के जो इंटरेस्ट थे वो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शेयर कर रहे थे जो कलकत्ता में उनके साथ वहाँ पे रुके हुए थे. इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रोक एंड नथैली Halhead were also busy discovering the ancient Indian heritage. उनको भी ancient Indian heritage में काफ़ी इंटरेस्ट था. Mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. Indian language को master करना था और संस्कृत and Persian works को English में transfer करना था. Together with them, Jones set up the Aesthetic Society of Bengal and started a journey called Aesthetic Researches. Jones and Coolbrook came to represent a particular attitude towards India. उनका attitude था इंडिया के तरफा. They shared a deep respect for ancient cultures, both of Indian and the West. उनके लिए उनके दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट थी एंशियंट कल्चर के प्रति, पुराने कल्चर के प्रति, इंडिया के भी और उनके खुद के भी. Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but has subsequently declined. उन्हें ऐसा लगता था कि पास्ट में इंडिया की काफ़ी अच्छा सिविलाइजेशन था लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम होते गया, डिक्लाइन होते गया. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. इंडिया को समझने के लिए उनके जो टेक्स्ट और जो सेक्रेड लैंग्वेज संस्कृत यूज़ की जाती थी उसे समझना बहुत ज़रूरी था. For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development of India. ये टेक्स्ट थे जो रिवील करते थे लोगों के आइडियाज़, लॉज,
हिंदू और मुस्लिम के लॉज, और एक नई स्टडी इस टेक्स्ट को मिल रही थी जिससे इंडिया के फ्यूचर की डेवलपमेंट दाव पे थी. So Jones and Coolbrooke went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others. So Jones and Coolbrooke discover करने गए ancient texts को, समझने गए उनका meaning क्या है, translate करने गए और उनको बाकी लोगों तक पहुंचाने गए. This project, they believe, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. So ये Britishers के लिए भी Indian culture समझने का opportunity होगा और Indians को भी अपने own heritage को समझने को मौका मिलेगा. और इससे क्या होगा, उन्हें समझ में आएगा कि हमारा past कितना sacred और अच्छा है. In the process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. और इस process में British guardians बन जाएंगे, guardians यानी कि सहकारी बन जाएंगे Indian culture के, और mastery भी कर सकते हैं. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote India rather than Western learning. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स इस पे आर्ग्यू कर रहे थे ब्रिटिश की तरफ कि वो इंडियन कल्चर को छोड़ के यानी वेस्टर्न लर्निंग को छोड़ के वो इंडियन लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर पोइट्री सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशन सेट करने की भी मांग हुई, जहाँ पे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना और उसे रीड करने की बात हो रही थी. The officials also taught that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they value and treasured. ठीक है, हिंदू और मुस्लिम को वो सारी चीज़ें सिखानी थी जो उन्हें ऑलरेडी पता थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे उसे वैल्यू और ट्रेजर करते हैं वो सिखाना ज़रूरी था. नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम, और ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं जो उन्हें एलियन यानी कि जिन्हें उनकी कोई जान पहचान नहीं थी. Only then, they believe, could the British hope to win a place in the hearts of the natives. तब जाके ब्रिटिश कोई जगह जीत पाएंगे उन इंडियंस के दिलों में. And then only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. और तब जाके जो एलियन यानी बिना इनवाइट किए हुए रूलर्स रिस्पेक्ट की मांग कर सकते हैं उनके सब्जेक्ट से. With the objects in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. Madrasa is an Arabic word for a place of learning, any type of school or college. And the Hindu college was established in Banaras in 1719 to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country. Not all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalists. Orientalists, those with a scholarly knowledge of the language and culture of Asia. So basically सारे offices जो थे उनको similar उनके ideas नहीं थे. कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा criticize यानी उसे नाम रख रहे थे कि ये सही बात नहीं होगी. Grave errors of the East. From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. वो उन्हें निंदा करते रहे 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर्स ये विजन ऑफ लर्निंग को. दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट. ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड. उन्हें ऐसा लगता था कि इंडिया का जो नॉलेज है वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और उसमें कुछ लॉजिक नहीं है. ईस्टर्न लिटरेचर वाज, इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है और काफ़ी कॉमेडी है. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये गलत होगा कि ब्रिटिश को इतने सारे एफर्ट लेने चाहिए ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए. जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट. तो जेम्स मिल एक ऐसे इंसान थे जो ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया उन्होंने. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट to be teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. उन्हें ऐसा लगता था कि उनको ये चीज़ें सिखानी नहीं चाहिए जो उनको ऑलरेडी पता है, इस वजह से कि हमें उनकी रिस्पेक्ट चाहिए या फिर हमें उनको के दिल जीतने हैं. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. तो एजुकेशन यानी पढ़ाई का एम यही है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो उनको काम में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी.
So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made. So Indians को फेमिलियर यानी उन्हें पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली और टेक्निकली क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी है वेस्ट में, रादर दैन विद द पोएट्री एंड सीक्रेट लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, या फिर वो पोइट्री या ऐसी कोई चीज़ें जिसका कोई काम आगे जाके उन्हें शायद ही ना हो. By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. उन्हें लगता था कि इंडिया एक uncivilized country है और इसे civilize करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. No branch of Eastern knowledge, according to them, could be compared to what England had produced. उनको ऐसा लगता था कोई भी ईस्टर्न नॉलेज की ब्रांच, कोई भी स्कूल जो इंडिया में है वो कंपेयर नहीं कर सकते हम वो वेस्ट जो इंग्लैंड में है. Who could deny, declared Macaulay, that वो कहते थे a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो एक छोटी सी लाइब्रेरी भी काफ़ी हो जाएगी पूरा इंडिया और अरेबिया का लिटरेचर कवर करने के लिए. He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental language. ठीक है, तो वो अर्ज करते रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया को कि ये पैसे बर्बाद मत करो पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, फॉर इट वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन माक्यूले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज. उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था. ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस. उनको ऐसा लगता था कि इंग्लिश नॉलेज से उनको इंडियंस को क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा लिटरेचर जो पूरे देश ने लिखा है वो पढ़ पाएंगे. It would make them aware of the development in Western science and philosophy. Western science and philosophy में वो जो प्रगति हुई है वो प्रगति वो पढ़ पाएंगे. Teaching the English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. English उनको सिखाने से क्या हो जाएगा, लोग सिविलाइज हो जाएंगे, उनके टेस्ट बदलेंगे और वैल्यू और कल्चर में इम्प्रूवमेंट आएगी. Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. The decision was to make English the medium of instruction for higher education. तो ये डिस्कशन था कि इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए हायर एजुकेशन का, and to stop the promotion of Oriental instructions like the Calicut Madrasa and Benares Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbooks now began to be produced for schools. So ये संस्कृत के अलावा उन्हें इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस होते गए स्कूल्स में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हम संस्कृत को साइड में रख सकते हैं. एजुकेशन फॉर कॉमर्स. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood. The president of the board of control of the company, it has to come to be known as Wood's dispatch. उसे Wood's dispatch भी कहा जाता था स्टूडेंट्स. जो प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया. उसमें बताया गया था कि कौन सी एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में फॉलो होनी चाहिए. It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning and opposed to Oriental knowledge. उसमें भी practical benefit बताए गए यूरोपियन लर्निंग के और ओरिएंटल लर्निंग को वहाँ पे खारिज किया गया. One of the practical uses the dispatch pointed was economic. Economic uses बहुत बताए गए स्टूडेंट्स. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. So European learning से क्या हो जाएगा, इंडियंस को enable यानी सीख जाएंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे एक्सपांड होता है, कैसे फ्लो होता है, एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. और इससे क्या हो जाएगा, उनकी खुद की कंट्री के रिसोर्सेज डेवलप हो जाएंगे. इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ. यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस हो जाएगी. वो चेंज द टेस्ट एंड डिज़ायर. उनके टेस्ट और उनके डिज़ायर चेंज हो जाएंगे एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स. फॉर इंडियंस वुड बिगैन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप. और इंडियंस क्या हो जाएंगे, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करने लगेंगे और चीज़ें खरीदने लगेंगे जो यूरोप में प्रोड्यूस होती है.
Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indian. Moral character Indians का भी improve हो जाएगा अगर वो European learning सीखे तो. It would make them truthful and honest. उनको वो truthful और honest बनाएगा and thus supply the company with civil servants who would be trusted and dependent upon. और इससे civil servants बनेंगे जिन पे हम trust कर सकते हैं और उन पे हम dependent रह सकते हैं. The literature of the East was not only full of grave errors, it could also not instill in people a sense of duty and a commitment to work. उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंडिया का जो लिटरेचर है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं और इसमें से क्या होगा, उसमें कुछ लोगों को सीखने नहीं मिलेगा, जैसे सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क, किसी चीज़ें नहीं सीखने मिलेंगी. नॉर कोड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर देश चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए रहते हैं वो भी शायद ही वो कोई सीख पाए. Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British. Education departments of the government were set up to extend control all over the matters regarding education. Education department set up किए government ने students. Steps were taken to establish a system of university education. Steps लिए गए ताकि university education को establish किया जाए. In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay. Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. Attempts भी लिए गए school education में क्या क्या changes ला सकते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, ये चीज़ों का डिस्कशन हो रहा था स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम पेज नंबर 87 पे हैं. व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल. लोकल स्कूल्स के साथ क्या हुआ. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, कैसे उन्हें पढ़ाया जाता था. हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कभी स्कूल्स गए थे. एंड इफ़ दे वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल, और अगर स्कूल्स थे तो ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हुआ. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. तो districts of Bengal and Bihar में William Adams ने जो Scottish missionary थे उन्होंने टूर किया. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. उन्हें पूछा गया कि कंपनी को कि बताओ प्रोग्रेस क्या है एजुकेशन का वर्नाक्यूलर स्कूल्स में. The report Adam produced is interesting. और जो एडम ने रिपोर्ट प्रोड्यूस किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. Adam found that there were over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more than 20 students each. But the total number of children being taught in these pathshalas was considerably over 20 lakh. इन पाठशालास में total number of students को कितने थे students 20 lakh. लेकिन हर एक small institute में कितने थे 20 students. These institutions were set up by the wealthy people or the local community. Local community या अमीर लोगों ने इसे set up किया था. At times they were started by a teacher guru. The system of education was flexible. Flexible था system. Few things that you associated with schools today were present in the पाठशालाज at that time. जो चीज़ें आप अभी स्कूल में सीख रहे हैं वही चीज़ें पाठशाला में एक अलग तरीके से सिखाई जाती थी. There were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations and no regular timetable. So students वहाँ पे सिर्फ ज्ञान बांटा जाता था. वहाँ पे कुछ ऐसी फीस नहीं थी, प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, अलग बिल्डिंग नहीं थी, बेंच नहीं था, चेयर नहीं था, रोल नंबर नहीं बुलाए जाते थे. ठीक है. तो इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री. एक बैनियन ट्री के नीचे यानी पेड़ के नीचे भी क्लासेस होते थे. इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज, शॉप और टेम्पल और एट गुरुज होम. राइट, विलेज के कॉर्नर में होते थे, कोई शॉप में या टेम्पल में या फिर गुरु के घर पे. फ़ी डिपेंडेंट ऑन देयर इनकम ऑफ पेरेंट्स. और फ़ी जो होती थी वो डिपेंड करती थी उनके पेरेंट्स के इनकम पे. द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर. टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड वॉट टू टीच. टीचिंग ओरल होता था और गुरु डिसाइड करते थे क्या उन्हें पढ़ाना है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट ऑफ डिफरेंट क्लासेस. ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस. सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठे थे, उन्हें अलग अलग क्लासेस में नहीं बिठाया जाता था. द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. और गुरु क्या करते थे, अलग अलग बच्चे से अलग अलग तरीके से बातें करते थे जिनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग थी. Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. Adam को पता चला कि ये जो flexible system बनाया गया है वो locally बच्चों को ठीक है. For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. लेकिन harvest के टाइम पे जहाँ पे खेती बाड़ी करनी होती थी तब classes नहीं होते थे क्योंकि रूरल बच्चों को
वहाँ पे फील्ड पे काम करना पड़ता था. द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर. पाठशाला वापस चालू होती थी जब क्रॉप्स को काटा जाता था और उसे स्टोर किया जाता था. दिस मेंट दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पेजेंट फैमिलीज कुड स्टडी. इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन पेजेंट फैमिलीज के भी पढ़ाई कर सकते थे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 88 पे है. न्यू रूटीन, न्यू रूल्स. Up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with the higher education. 19th century, mid 19th century में कंपनी को टेंशन आ गया था हायर एजुकेशन को लेके. सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस. इसलिए उन्होंने लोकल पाठशालास को कहा कि तुम अपना काम करते रहो क्योंकि हमें इंटरफेयर नहीं करना है यहाँ पे. आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नैक्युलर एजुकेशन. उन्होंने सोचा कि चलो अभी ये सिस्टम को भी थोड़ा इम्प्रूव करते हैं. It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. उनको लगा कि हो सकता है नए ऑर्डर इंट्रोड्यूस करके सिस्टम में ही नए रूटीन बना के, नए रूल्स बना के और रेगुलर चेकअप करके पाठशालास का कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं. How was this to be done? What measures did the company undertake? It appointed a number of government pundits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट के पंडित को अपॉइंट किया जो हर उनका 4 या 5 स्कूल्स को हर एक पंडित देखता था स्टूडेंट्स. द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. उनका रोल यही रहता था कि हर एक पाठशाला में जाना है और वहाँ के उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को बढ़ाना है. Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. हर गुरु को रिपोर्ट सबमिट करना होता था और टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लेना होता था. Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. पढ़ाई जो होती थी वो अभी टेक्स्ट बुक के ज़रिए होने लग गई और लर्निंग जो होता था उसका भी टेस्ट होता था लेकिन एनुअली हर 3 महीने में एग्ज़ाम होती थी. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फ़ी. बच्चों को एक रेगुलर फ़ी पे करनी होती थी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन. पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. गवर्नमेंट ग्रांट से इसका सपोर्ट होता था, इसको इनकम मिलता था स्टूडेंट्स. दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट. और जो पाठशालास थे जिनको जो वो रूल्स नहीं फॉलो करते थे उन्हें कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता था. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government added and regulated पाठशालास. और जो ओवर टाइम गुरुज होते थे जिनको उनका खुद का स्वयं इंडिपेंडेंस चाहिए होता था वो मुश्किल हो जाता था क्योंकि नए रूल्स आए थे गवर्नमेंट को और उन्हें वो रूल्स फॉलो करने ज़रूरी होते थे. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस. और ये नए रूल और रूटीन का कुछ और कॉन्सिक्वेंस भी था. In the early system, children from poor peasant families had been able to go to pathshalas. Since the timetable was flexible, the discipline of the new system demanded regular attendance, even during harvest time when children of poor families had to work in the fields. यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों को पाठशाला में जाने देते थे. टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था पहले, बट अभी डिसिप्लिन नई रूल की वजह से क्या हो गया था कि रेगुलर अटेंडेंस हो गया था और बच्चों को हार्वेस्ट के टाइम पे भी स्कूल आना पड़ता था. इस वजह से क्या होता था उनके फैमिलीज़ को खुद जाके फील्ड पे काम करना पड़ता था. इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न. और अगर बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करते थे तो उनको इनडिसिप्लिन चार्जेस होते थे. उन्हें बताया जाता था कि शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने का, इस वजह से वो अटेंड नहीं कर रहे. द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन. British officials were not only people thinking about education in India. From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk on the need for a widespread of education. ठीक है, ब्रिटिशर्स ही नहीं लेकिन इंडिया में भी अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इंडिया को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. Impressed with the developments in Europe, some Indians felt the Western education would help modernize India. कुछ लोगों को लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन शायद से इंडिया को मॉडर्नाइज करेगा. They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education. You would read about some of these efforts in chapter 9. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश को अर्ज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पढ़ाए ताकि हमारे यहाँ के इंडियंस पढ़ लिख पाएँ. There were other Indians, however, who reacted against Western education. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two such individuals. Let us look at what they had to say.
इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें गुलाम बना दिया है. महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. ये जो colonial यानी ब्रिटिश की पढ़ाई लिखाई थी वो एक inferiority यानी बड़प्पन इंडियंस के माइंड में क्रिएट कर रही थी. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. उनको ऐसे फील हो रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन काफ़ी ऊंचा है और हमारा जो कल्चर है इंडिया का वो काफ़ी नीचा है. देर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, इस एजुकेशन में पॉइजन था, जहर था, सेट महात्मा गांधी. इट वॉज सिंफुल, इट एनस्लेव्ड इंडियन, वो काफ़ी जहरीला था और वो इंडियंस को गुलाम बना रहा था. इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutes began admiring British rule. सब कुछ वेस्टर्न था, इस वजह से इंडियन को कैसा हो गया कि वो ब्रिटिश रूल को सराहने लगे. महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover the sense of dignity and self-respect. महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन ऐसा हो जिससे इंडियंस को अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े उनकी. During the national movement, he urged students to leave the education institutes in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. नेशनल मोमेंट के टाइम पे उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ने कहा क्योंकि ब्रिटिश को दिखाने के लिए कि इंडियंस को अभी एनस्लेव होना नहीं है, इंडियंस को अभी उनका गुलाम नहीं बनना है. महात्मा गांधी strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching. महात्मा गांधी को लगा कि इंडियन लैंग्वेजेस आर द ओनली मीडियम ऑफ टीचिंग. Education in India crippled Indians, distanced them from their own social surroundings, and made them strangers in their own lands. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. तो इंग्लिश ने इंडियंस को अपंग बना दिया था, ठीक है. तो इस वजह से क्या हो रहा था कि सोशल सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही थी. उनको खुद को ऐसा लग रहा था कि वो गलत जगह पैदा हुए, उन्हें ब्रिटिश या कोई वेस्टर्न कंट्री में पैदा होना चाहिए था. ये सारे, और उन्हें नई लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलनी चाहिए. ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लग गई थी स्टूडेंट्स. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल नॉलेज. वेस्टर्न एजुकेशन उनके हिसाब से रीडिंग एंड राइटिंग था, उनके हिसाब से ओरल नॉलेज कुछ नहीं था. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रादर दैन लाइव्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. उनके हिसाब से टेक्स्ट बुक किताबी नॉलेज ही वो बताता था, किसी का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ काम में नहीं आता था. ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन आउट टू बी डेवलप्ड अ पर्सनस माइंड एंड सोल. एजुकेशन एक इंसान के पर्सनालिटी को बढ़ाना चाहिए. लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. सिर्फ लिखना और पढ़ना एजुकेशन नहीं है. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लर्न अ क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट. खुद लोगों को खुद से काम सीखना है, क्राफ्ट कुछ सीखना है, उससे जाके उनका नॉलेज बढ़ेगा. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. इनसे उनका माइंड डेवलप होगा स्टूडेंट्स, और उनकी कैपेसिटी समझने की बढ़ेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 90 पे हैं. As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from the setup by the British. ठीक है. So students, यहाँ पे national sentiments spread, other thinkers also began to think of a system of national education. और बाकी के thinkers भी सोचने लगे कि इंडिया के एजुकेशन को हम कैसे प्रमोट करें और कैसे इसमें चेंजेस ला सके. Tagore's Abode of Peace. Many of you might have heard of Santi Niketan. Do you know why it was established and by whom? Rabindranath Tagore started the institute in 1901. As a child, Tagore hated going to school. जब टागोर छोटे थे उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था. He found it suffocating and oppressive. उनके लिए वो घुटन जैसी लगती थी. The school was appeared like a prison. उनके लिए prison जैसा लगता था. For he could never do what he felt like doing. उनको जो करना था वो वैसे कुछ कर नहीं पा रहे थे स्कूल में. So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. बाकी के जो बच्चे थे वो टीचर की तरफ सुनते थे, लेकिन टागोर का दिमाग कहीं और भटका रहता था. The experiences of his school days in Calcutta shaped Tagore's ideas of education. जो एक्सपीरियंस उनको कलकत्ता में आया उससे उनका एजुकेशन की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया. On growing up, he wanted to set up a school where the children was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires.
सो टागोर को ऐसे स्कूल बनाना था जिससे बच्चे फ्रीली सोच सके, अपने खुद के विचार रख सके और अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके. टागोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड आउट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग. बचपन ही एक ऐसा चीज़ है जिससे सेल्फ लर्निंग हो सकती है, आउटसाइड द रिजिड एंड द रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश. जो रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन सिस्टम सेटअप किया था ब्रिटिश ने, उससे बाहर. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी. टीचर्स कैसे होने चाहिए? इमेजिनेटिव होने चाहिए, बच्चों को समझनी चाहिए और उनका क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए. According to Tagore, the existing schools kill the natural desire to the children to be creative or sense of wonder. उनके हिसाब से नेचुरल डिज़ायर बच्चों का क्रिएटिविटी और उनके सेंस ऑफ वंडर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ये ब्रिटिश के स्कूल्स. Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. टागोर के हिसाब से क्रिएटिव लर्निंग बच्चों के लिए तब डेवलप हो सकती थी जब वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्कूल 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूर एक ऐसे रूरल एरिया में करी. He saw it as an abode of peace. उन्होंने देखा कि वो काफ़ी अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, शांति निकेतन. Where living in harmony with nature, child could cultivate their natural creativity. और पीसफुल जगह पे जहाँ पे नेचर से करीब अगर कोई रहेगा तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को उभार पाएगा. In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. There were, however, differences too. Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. गांधी जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कि वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी को वर्शिप करते हैं, यानी उनको पूछते हैं. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw एज द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन. और टागोर को क्या करना था, उन्हें जो कंबाइन करना था वेस्टर्न के जो सिविलाइजेशन में जो प्रैक्टिस होते हैं और इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उन दोनों का मिश्रण उन्हें करना था और सबसे बेस्ट इंडियन ट्रेडिशन को देना था. He emphasized that the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music and dance. So science and technology भी सीखने बोला था शांति निकेतन में, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस के अलावा. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. बहुत individual thinkers थे जो सोच रहे थे कि national education system को अच्छा कैसे बनाया जाए. Some wanted changes within the system set up by the British. कुछ लोगों को changes चाहिए थे system में ही जो British ने set किए हैं, and felt that the system could be extended so as to include wider sections of people. और लगा कि ये सिस्टम जो है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है ताकि इंक्लूड किया जाए बहुत सारे लोगों को. Others urged that alternate systems be created so that people were educated into a culture that was truly national. बाकी लोगों को अर्ज किया गया एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम जहाँ पे लोग पीपल एजुकेट हो ऐसे कल्चर में जो नेशनल हो, ठीक है, जो नेशन के बारे में बताए. जैसे अभी 8th स्टैंडर्ड CBSE के टेक्स्ट बुक्स में हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया की जानकारी हमें मिल रही है. Who was to define what was truly national? The debate about what the national education ought to be continued till after independence. After independence तक डिबेट होते ही गया कि नेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है और इसे बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए. ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट लाइन्स क्या है. 1781 a madrasa was set up in Calcutta. 1791 the Hindu college was set up in Banaras. 1835 the English Education Act was enacted. 1854 Wood's Dispatch was issued. 1901 Rabindranath Tagore established Shanti Niketan. Thank you students.